See, we had started yesterday with meaning of securitization, okay, and we had done process. And what is special purpose vehicle? We have done it yesterday. Now, what are the types that securities are available in the form of what to say securitization? What are the securities that are available? It is mortgage-backed security, which are backed by mortgage. Asset-backed securities, which are backed by consumer debt, means loans, and collateralized debt obligations, which are mostly backed by corporate bonds or corporate debts. That means if you give loan to corporate companies, then it is backed by corporate companies, the loan that is given to corporate companies. How securitization works, let us see that. In securitization, the company holding the assets known as originator. Here, as per the example yesterday also, we took the example of bank. So let us continue with the example of bank. Okay, the originator, let it be a bank. Now bank holding the asset gathers the data on the assets it would like to remove. That means bank gather all those illiquid assets at one place, and all those illiquid assets bank wishes to remove from its associated balance sheets. That means bank does not want these illiquid assets in their balance sheets, and therefore they want to remove it. For example, if it were a bank, अभी इन्होंने भी बैंक का example दिया है. For example, if it were a bank, it might be doing this with a variety of mortgages and personal loan. It does not want to service anymore. That means if bank does not मैम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी. wait. Okay. Am I clearly audible? Is my voice clearly audible? Okay. Yeah. Okay. So the gathered group of assets is now considered as reference portfolio. That means if bank does not want these personal loans and mortgage securities to service anymore, it does not want to show these loans in the balance sheet, and it does not want any amount to be received in the form of installments. Therefore, these banks undergo the process of securitization. And now these gathered group of assets, जितनी भी assets हैं जो जमा हुई हैं, illiquid assets, is now considered as a reference portfolio. इनका दूसरा नाम, इनको नाम दिया जाता है. That is reference portfolio. The originator then sells these portfolios to an issuer, who is known as special purpose vehicle, who will create the tradable securities. Now, special purpose vehicle is responsible to convert all these assets into the form of securities. These created securities will represent a stake or stake in assets in the portfolio. Now, whosoever will purchase, investors will buy these created assets, no? So they will earn specified rate of returns because they hold these assets. They are the stakeholders of these assets. Those whoever will invest in these securities will become the investors, will become the stakeholders, and therefore they will get a specific rate of returns on these portfolio, on these investments. Often the reference portfolio, the new securitized financial market, instrument, is divided into different sections. अब इनको ना डिवाइड किया जाता है, जो ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं ना सिक्योरिटीज के फॉर्म में, उसको ना डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, दैट आर कॉल्ड ट्रेंचेस. क्या बोलते हैं उनको? ट्रेंचेस. ओके, द ट्रेंचेस कंसिस्ट ऑफ, अभी ट्रेंचेस में क्या होता है? इंडिविजुअल एसेट्स ग्रुप्ड बाय वेरियस फैक्टर्स such as type of loans, maturity date, interest rates, amount of remaining principal amount. That means ये ट्रेंचेस में क्या होता है, अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे ये ट्रेंचेस को डिवाइड किया जाता है. दैट इज व्हाट इज द टाइप ऑफ लोन it was when I was purchasing, when special purpose vehicle was purchasing from bank. What was the type of loan? Okay, house property का लोन था, कंज्यूमेबल गुड्स का लोन था, कॉर्पोरेट को लोन दिया था, कैसे टाइप का लोन था ये?
उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, उनके इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, ठीक है, और अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा हुआ है जो कस्टमर से रिसीव करना बाकी है। इनके बेसिस पे इनको ग्रुपिंग की जाती है, एसेट्स की ग्रुपिंग, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से, और वो एक एक सेक्शन को बोला जाता है ट्रेंच। As a result, each trench carries different degrees of risk. Of course, प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा रहा हुआ है, ज्यादा पेंडिंग है, ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट रेट सॉरी तो रिस्क भी ज्यादा होगा, है ना। तो रिस्क ज्यादा होगा तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे ना, रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है ना, रिटर्न्स भी। Therefore, according to risk, they offer you different yields. Yields मतलब earnings. आपको जो इंटरेस्ट दिया जाता है उस हिसाब से दिया जाता है, रिस्क के हिसाब से। हायर लेवल ऑफ रिस्क कोरिलेट टू हायर इंटरेस्ट रेट। अगर आप रिस्क ज्यादा लेने के लिए रेडी हैं, किसी पोर्टफोलियो में रिस्क ज्यादा है, तो आपको इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा दिए जाएंगे। द लेस क्वालिफाइड बोरोवर्स ऑफ अंडरलाइंग लोन्स आर चार्ज्ड। ठीक है, मतलब ये बोला गया है कि ज्यादा रिस्क जो एपेटाइट जिनका ज्यादा है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। ओके, नीचे भी वही बोला है, द हायर द रिस्क द हायर द पोटेंशियल रेट ऑफ रिटर्न्स। अब जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है इसका परफेक्ट एग्जांपल है सिक्योरिटाइजेशन का। आफ्टर कंबाइनिंग ऑल द मॉर्गेजेस, मतलब आपने कस्टमर को लोन दिया, आप एज अ बैंक, अब वो आपको मॉर्गेज के सिक्योरिटी के बेसिस पे आपको लैंड मॉर्गेज कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे एक कस्टमर थोड़ी ना है, ऐसे तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको आप लोन देते हैं और वो आपके पास सिक्योरिटी बेसिस पे कुछ ना कुछ मॉर्गेज करके जाते हैं, करेक्ट। तो अब ये जो मॉर्गेजेस, जो आपके पास इतने सारे मॉर्गेज सिक्योरिटीज जमा हो गए, उनका आप एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं, मतलब कंबाइन करते हैं सारे मॉर्गेजेस को और उनको कन्वर्ट करते हैं लार्ज पोर्टफोलियो में और इशू कर देते हैं आप इशूअर को, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल को, who can then divide the pool into smaller pieces, जिसको मैंने ट्रेंचेस बताया, ठीक है, स्मॉलर पीसेस में ट्रेंच के हिसाब से डिवाइड कर देता है, बेस्ड ऑन ईच मॉर्गेज इनहेरेंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, मतलब किसमें कितना चांस है कि डिफॉल्ट होने का, या रिस्क कितना है एक एक पोर्टफोलियो में एक एक सिक्योरिटी का, ठीक है, उस हिसाब से ये सिक्योरिटीज को ट्रेंचेस में डिवाइड किया जाता है। These smaller portions can then be sold to investors in the type of a bond. बॉन्ड मतलब वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बनाकर वो लोग बेचते हैं इन्वेस्टर्स को। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. बाय बाइंग इनटू सिक्योरिटी, दैट मींस अगर आप कोई सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, समझो आप इन्वेस्टर, अगर आप कोई सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, इन्वेस्टर्स इफेक्टिवली टेक द पोजीशन ऑफ द लेंडर, दैट मींस इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, किसकी पोजीशन ले लेते हैं, लेंडर की, यानी कि अल्टीमेटली आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, मतलब आपने पैसा लगाया ना स्पेशल पर्पस व्हीकल को, और ये वो ही अमाउंट है, ये वो ही फंड्स हैं जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बैंक को देता है और बैंक आगे लोगों को लोन देती है, तो इनडायरेक्टली आप लेंडर बन गए ना। समझ में आ रहा है आपका पैसा कैसे रोटेट होके कैसे किस फॉर्म में निकलता है, लोन के फॉर्म में आगे पहुंचता है लोगों के पास। समझ आ रहा है? यस, नो, कुछ? Yes, ma'am. ओके, सो सिक्योरिटाइजेशन अलाउज द ओरिजिनल लेंडर, जो ओरिजिनल लेंडर कौन है, बैंक, ठीक है, टू रिमूव द एसोसिएटेड एसेट्स फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट, मतलब सिक्योरिटाइजेशन ओरिजिनल लेंडर की बैलेंस शीट में से इलिक्विड एसेट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। अच्छा, अगर इलिक्विड एसेट्स रिमूव हो गई तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी। अच्छा, लाइबिलिटीज कम, एसेट्स ज्यादा, कैश बैलेंस ज्यादा दिखेगा। अगर कैश बैलेंस ज्यादा है बैंक के पास तो आप और ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, एडिशनल लोन, वो ही लिखा हुआ है देखो, with less liability on their balance sheet they can underwrite additional loans. Investors profit as, investors को भी प्रॉफिट होता है क्या, as they earn rate of return based on their associated principal and interest payments, मतलब जिस हिसाब से वो सिक्योरिटी खरीदते हैं लेते हैं रिस्क के हिसाब से, उस हिसाब से उनको रिटर्न्स भी तो मिलते हैं, तो इन्वेस्टर्स का भी फायदा है यहाँ पर। आया समझ में?
ये हमने क्या पढ़ा, हाउ सिक्योराइजेशन वर्क्स। इसका दूसरा नाम होता है मॉडस ऑपरेंडी, ठीक है। आई शैल राइट इट इन द ब्रैकेट। आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था, याद है ना, इसकी मीनिंग बताई थी लास्ट चैप्टर में। डू यू गाइज रिमेम्बर मोडस ऑपरेंडी का मतलब Yes, होता है, ma'am. यस, हाउ सिक्योराइजेशन वर्क्स, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। अब देखिए, कैसे ऑपरेट होता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेफरेंडम हाउ से? डज इट ऑपरेट, हाउ डज इट ऑपरेट इज नोन एज मोडस ऑपरेंडी, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको, अभी देखो इसको कोई कोई मोडस ऑपरेंडी कहता है, कोई मोडस ऑपरेंडी कहता है, सो इट्स अ फ्रेंच वर्ड। आप अभी मतलब प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, ठीक है। अब इसके टाइप्स भी हैं सिक्योराइजेशन के। सिक्योराइजेशन के टाइप्स क्या है, एबीएस, एमबीएस, सीडीओ, तो मैंने पहले ही बता दिया। एबीएस एसिड बैक, अभी हम करेंगे थोड़ा डिटेल में, सिंपल है बहुत, आप एक ही स्लाइड पढ़ के समझ सकते हैं कि एबीएस क्या होता है, एमबीएस क्या होता है। एमबीएस मतलब मॉर्गेज बैक, एबीएस एसिड बैक। मॉर्गेज बैक में ना दो होते हैं, ध्यान से सुनो। मॉर्गेज बैक में दो होते हैं, एक रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी और एक कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। देखेंगे हम दोनों में क्या फर्क है। और एक होता है कॉलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, ठीक है, और एक होता है फ्यूचर फ्लो सिक्योराइजेशन। बहुत सिंपल है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो, रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, दीज बॉन्ड्स, ये एक तरीके के बॉन्ड्स क्रिएट किए जाते हैं जो लोगों को, इन्वेस्टर्स को आगे दिए जाते हैं। ये वो बॉन्ड्स हैं which comprises of various mortgages like properties, land, house, jewelry, other valuables। लेकिन पर्सनल, पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरी खुद की प्रॉपर्टी, मेरी लैंड, मेरा हाउस प्रॉपर्टी, मेरी ज्वेलरी, एक इंडिविजुअल की बात चल रही है। रेसिडेंशियल जो लोगों की होती है, लोगों का घर जो रहने के लिए होते हैं। ज्वेलरी जो पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे लोग यूज करते हैं अपनी ज्वेलरी, पर्सनल ज्वेलरी। अदर वैल्यूएबल्स मतलब और भी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल्स हैं जिनका प्राइस हाई होता है, जैसे ज्वेलरी, पर्ल्स, डायमंड्स, वो सब ज्वेलरी में ही आ गई, ठीक है ना। तो ऐसी इसमें ना वो सारे बॉन्ड्स, बॉन्ड्स किस फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से मॉर्गेज प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको बॉन्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है, प्रॉपर्टी, लैंड, हाउस, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल्स। कमर्शियल में क्या होते हैं, कमर्शियल मॉर्गेज बैकिंग, द बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय बंडलिंग डिफरेंट कमर्शियल एसेट्स। अभी यहाँ पे मैं कौन से एसेट्स की बात कर रही हूँ, बिजनेस, कमर्शियल। कमर्शियल एसेट्स मतलब जैसे ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, शॉप। समझ में आ रहा है मैं कौन सी किस चीज, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोल सकती हो आप कमर्शियल में। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. ओके। तो मॉर्गेज बैक में दो होते हैं, एक रेसिडेंशियल, एक कमर्शियल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये स्लाइड डाला है। डिस्क्राइब द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिडेंशियल मॉर्गेज लोन दैट आर टिपिकली सिक्योराइज्ड। मतलब अभी हम ना डिटेल में देख रहे हैं रेसिडेंशियल मॉर्गेज लोन्स क्या होते हैं। ये पहला वाला, मॉर्गेज में दो होते हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल। इसमें रेसिडेंशियल मॉर्गेज लोन क्या होते हैं, देखो, अ मॉर्गेज लोन और अ मॉर्गेज इज अ टाइप ऑफ sorry, mortgage is a loan secured by collateral of real estate in which borrower is obliged to make predetermined series of payments। सबसे पहले तो आप एज अ कस्टमर बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेकर आप अपना घर, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं घर का, आप अपना घर को मॉर्गेज कर देते हैं और उसके अगेंस्ट में यू आर ऑब्लाइज्ड, मीन्स देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू आर ऑब्लाइज्ड, यू हैव टू पे predetermined series of payments, series of payments means installments, predetermined means mutual agreed between two parties, bank and the customer, कि प्रिंसिपल अमाउंट इतना इतना पे करना है, इंटरेस्ट इतना इतना पे करना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट प्रोसेस तो समझ गए कि आपने लोन लिया और मॉर्गेज कर दिया, उसके अगेंस्ट में आप सीरीज ऑफ पेमेंट्स मतलब प्री डिटरमाइंड इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। मॉर्गेज गिव्स द लेंडर the right to foreclose if the borrower defaults।
अगर आप एज अ कस्टमर, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की, तो अब लेंडर को राइट है कि अब ये जो एसेट है ना मेरे हाथ में, लैंड आपने जो आपने अपना घर गिरवी रखा था, उसको फोरक्लोज करने का मतलब देखना कि इसमें से कितना वसूल हो सकता है ना, मतलब सेल करना, आगे आगे बेच देना। बैंक का राइट है कि आपका घर खाली करवा कर उसको आगे बेच देना। क्यों? क्योंकि आप प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी आप पे नहीं कर पा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो बैंक को फोरक्लोज करने का ऑप्शन होता है, मतलब राइट होता है। समझ में आया? फोरक्लोज अलाउज, फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है? इट अलाउज द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड देन सेल इट टू रिकवर द फंड्स। That means you will now be able to sell the property, sell the house property that was mortgaged and recover the funds because customer has defaulted. आई बात समझ में? टू रिकवर द अमाउंट हम लोग वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, उसे कहते हैं फोरक्लोजर। ठीक है, फोरक्लोजर कहते हैं उसे। Usually the amount of loan advance is less than the property purchase since the borrower makes a down payment. अब जो यूजुअली जो अमाउंट ऑफ लोन होता है ना, जो लोन एडवांस में दिया जाता है आपको, लोन इज लेस देन द प्रॉपर्टी परचेज। ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी का रेट ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि बोरोवर डाउन पेमेंट भी तो करता है ना। ऐसे नहीं कि लोन ले लिया और कोई डाउन पेमेंट नहीं किया। ठीक है, लोन टू वैल्यू रेशियो इज लेस देन 100%। मतलब लोन का जो वैल्यू होता है और जो प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है, लोन टू वैल्यू, लोन टू वैल्यू मीन्स लोन का अमाउंट एंड प्रॉपर्टी का वैल्यू, वो लेस देन 100% होता है। ठीक है, मतलब लोन का वैल्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से कम होता है, कम। ओके, नेक्स्ट। अब रेसिडेंशियल, इसी रेसिडेंशियल मॉर्गेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखिए, इंटरेस्ट रेट यूजुअली फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। amortization मतलब amount borrow gradually reduced although interest only mortgages also exist। मतलब जैसे जैसे amortization का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ करना। जैसे जैसे आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, अब आपका जो बर्डन है वो कम, ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पे करते जैसे जैसे जाएंगे, वैसे वैसे आपका वैल्यू जो बर्डन है लोन का वो कम होता जाएगा। आई बात समझ में? प्री पेमेंट ऑप्शंस एंड पेनल्टीज। अच्छा, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है ना? पेनल्टी लगती है ना, मेकिंग अ पेमेंट इन एक्सेस ऑफ अ शेड्यूल्ड अमाउंट में अट्रैक्ट पेनल्टीज। फोरक्लोजर, अभी अभी मैंने बताया, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक मतलब लेंडर जो आपको लोन दे रहा है, बैंक इज नोन एज लेंडर, जो आपको लोन दे रहा है उसके पास ऑप्शन है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो दे हैव अ राइट टू फोरक्लोज। फोरक्लोज मींस, यस वेरी गुड, फोरक्लोज मींस टू सेल द प्रॉपर्टी टू रिकवर द फंड्स। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, किसके? रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। अच्छा, लेंडर राइट्स क्या होते हैं? लेंडर राइट्स आर आउटलाइन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। लेंडर के कुछ राइट्स हैं जिनको गाइडलाइंस जिनको आउटलाइन किया गया है, जिनकी लिस्ट बनाई गई है, सो दैट उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड हो, सो दैट बैंक का नुकसान ना हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लेंडर मतलब बैंक। अब है ना, देखो, रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज और कोलेटरलाइज मॉर्गेज ऑब्लिगेशंस इंक्लूड होते हैं जब, तो वो पूछ रहा है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी देखो, मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? ये कब क्रिएट होता है? क्रिएटेड व्हेन अ पूल ऑफ मॉर्गेजेस सेल शेयर्स और पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जब आप एज ए बैंक स्पेशल पर्पस व्हीकल को, स्पेशल पर्पस व्हीकल मैंने आपको पहले ही बताया ये कौन होता है? ये इंस्टीट्यूशन होता है जो आपसे लिक्विड एसेट्स खरीद कर आपको शेयर्स और सिक्योरिटीज के फॉर्म में कन्वर्ट करके पूरा एडवांस दे देते हैं, पेमेंट करते हैं आपको, लमसम पेमेंट। ठीक है,
अब ये कब क्रिएट किया जाता है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स? ये तब क्रिएट किया जाता है जब सारे मॉर्गेज मॉर्गेज वाली सिक्योरिटीज को हम बेचकर शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे या सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये सर्टिफिकेट जो खरीदेगा उसको दिया जाएगा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। जैसे अब मैंने किसी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया तो प्राइज जीतने पर मुझे कैसे ट्रॉफी या फिर कोई सर्टिफिकेट मिलता है। तो किसी किसी प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया, किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, ये वही सर्टिफिकेट है और इनके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते हैं लोग, इन्वेस्टर्स। ठीक है। अ पूल कैन कंसिस्ट ऑफ several thousands or only a few mortgages। या तो इसमें बहुत सारी एसेट्स हो सकती है मॉर्गेज सिक्योरिटीज की, या फिर कुछ भी हो सकती है, थोड़ी सी भी हो सकती है। कैश फ्लो ऑफ सच सिक्योरिटीज डिपेंड ऑन कैश फ्लो ऑफ अंडरलाइंग पूल ऑफ द मॉर्गेजेस। अब जो सिक्योरिटीज पे कन्वर्ट किया गया है ना, और जो सिक्योरिटी आप खरीद रहे हैं उनमें से आपको जितने रिटर्न्स मिल रहे हैं वो रिटर्न्स किस पे डिपेंड करते हैं? किस पे डिपेंड करते हैं? जो एसेट थी मॉर्गेज के पीछे, मॉर्गेज में लैंड था, बिल्डिंग था और फैक्ट्री बिल्डिंग थी, मतलब रेसिडेंशियल की बात कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी था, ज्वेलरी था, किस टाइप का एसेट था और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस हिसाब से सिक्योरिटीज के रिटर्न्स आपको दिए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पास थ्रू सिक्योरिटीज मतलब जितना जितना आपकी आपकी जो एसेट थी, जिस टाइप की एसेट थी, ज्वेलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जिस टाइप की एसेट थी उस पे डिपेंड करेगा आपका सिक्योरिटीज का कैश फ्लो, मतलब आपकी इनकम। कैश फ्लोज आर यूजुअली लोअर। इसमें ना कैश फ्लो थोड़े कम ही होते हैं, लोअर होते हैं। लोअर बाय एन अमाउंट इक्वल टू, सॉरी इसका मीनिंग ये नहीं है, सॉरी। कैश फ्लोज आर यूजुअली लोअर बाय एन अमाउंट इक्वल टू सर्विस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फीस ऑफ द मॉर्गेज। इसका मतलब ये है कि जो आपको इनकम मिलती है ना, कैश फ्लो मतलब इनकम, यहाँ पे जो आपको इनकम मिल रही है ना, इनकम किसको मिल रही है? इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स को जो इनकम हाथ में मिलती है ना, वो काट के, क्या काट के मिलेगा? माइनस करके, लोअर बाय द अमाउंट, माइनस करके आपको जो सर्विस चार्जेस दी जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, मॉर्गेज फीस, जो भी, वो माइनस करके फिर आपको पेमेंट हाथ में मिलती है। ओके, मतलब आप जो अर्न करते हैं ना उसमें से फीस वगैरह सब कटी हुई होती है क्योंकि आपको फाइनेंशियल सर्विस मिल रही है ना। ऐसे ही होता है बैंक के साथ। बैंक जब स्पेशल पर्पस व्हीकल को बेचेगा तो उसके हाथ में भी जो कैश फ्लोज आएंगे उसमें से डिस्काउंट कटेगा। ऐसे ही होगा जब स्पेशल पर्पस व्हीकल मर्चेंट बैंकर को अपना पास थ्रू सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट करके देते हैं, तो मर्चेंट बैंकर इन्वेस्टर्स लेके आएंगे ना, तो मर्चेंट बैंकर भी अपनी फीस काट कर स्पेशल पर्पस व्हीकल को इनकम देता है। सो दिस प्रोसेस गोज ऑन। आया समझ में? क्लियर है सबको? यस मैम। और यहाँ पर देखिए अगर आपको डाउट है तो कैश फ्लो बार बार लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 2 बार। कैश फ्लो में 2 आपको इनकम्स मिलती है, एक प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। क्योंकि लोन, आपने ये लोन दिया था ना, लोन के फॉर्म में आपकी ये मॉर्गेज सिक्योरिटीज है, तो बैंक को तो प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है। वैसा ही स्पेशल पर्पस व्हीकल को भी दिया जाता है, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट बैंक को पे कर रहे हैं ना हम, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आया? और जो इन्वेस्टर है जो सिक्योरिटीज खरीदता है, लास्ट चेन, वो भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका भी तो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट भी तो है, तो उनको प्रिंसिपल अमाउंट ही मिलेगा प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, तब तो वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे। अगर आप उनको सिर्फ उनका प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस करो इनकम के फॉर्म में, तो क्या वो इनकम होगी? नहीं। जब तक आप उनको इंटरेस्ट नहीं देंगे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, तब तक वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे आपके पास? Why will they invest until they get anything extra, something extra out of the amount which is principally invested? Okay. Next is commercial. Let us discuss commercial. Commercial mortgage-backed securities are those which are backed by pool of commercial mortgage assets. Of course, that are income-producing assets. Income-producing assets means factory building. आपने factory building rent पे
सॉरी मॉर्गेज किया था लोन लेने के लिए बैंक के पास। अब वही फैक्ट्री बिल्डिंग को मैंने बेच दिया स्पेशल पर्पस व्हीकल को, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल उसको आगे चल के इनकम प्रोड्यूस हो सकती है ना वो एसेट में से। उन्हीं बिल्डिंग को उन्हीं बिल्डिंग के जो मॉर्गेज सिक्योरिटी थी वो बिल्डिंग, उसी को ही सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके आगे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज बेची जाती है। तो ऑफ कोर्स ये सारी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसमें से हम इनकम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज में इंक्लूड अपार्टमेंट बिल्डिंग, जैसे जैसे विक्रोली में आप देखो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो जो कॉम्प्लेक्स हैं, सॉरी जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिसमें ऑफिसेस बनी हुई हैं। जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में देख लीजिए आप, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए वो बिल्डिंग्स को नहीं दिया गया है, वो किस लिए दिया गया है, कमर्शियल पर्पस के लिए, कि आप अपना यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग के फॉर्म में, ऑफिस ब्लॉक के फॉर्म में ऑफिसेस बने हुए हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, शॉपिंग सेंटर्स, होटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ गई। हॉस्पिटल्स, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जैसे एग्जांपल हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये होटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, ये सारे कमर्शियल पर्पस के लिए तो होते हैं, कोई रहने के लिए थोड़ी आता है। शॉपिंग सेंटर में कोई रहने, तो होटल में रहने आते हैं लोग, पर ये तो होटल वाले का तो बिजनेस है ना, आपका अपना घर थोड़ी नहीं है, आप तो छोड़ के जाएंगे ना फिर वो। आया समझ में? तो ये कमर्शियल पर्पस वाली सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कमर्शियल मॉर्गेजेस आर नॉन रिकोर्स लोन्स। नॉन रिकोर्स मीन्स विदाउट रिकोर्स टू द क्लाइंट्स, मतलब इसमें क्लाइंट कभी भी बैड डेट का बर्डन नहीं लेगा। The lender can only look to the income producing properties, backing the loan for the interest and principal payment. That means बैंक का क्या है, बैंक तो आपको बेच देगा स्पेशल पर्पस व्हीकल को, अब उसको क्या चाहिए, बस प्रिंसिपल पेमेंट, प्रिंसिपल का रीपेमेंट और इंटरेस्ट का लोन, जो लोन मैंने कस्टमर्स को देकर रखा है जिसकी इंस्टॉलमेंट्स मैं रिसीव करने वाली हूँ, उसका लमसम पेमेंट आप मुझे दे दो। बैंक तो यही बोलता है ना, तभी तो बेच रहा है, वो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में बैंक क्यों जा रहा है, इसी पर्पस के लिए वो नॉन रिकोर्स लेता है, विदाउट रिकोर्स होता है, हमेशा याद रखो। कमर्शियल मॉर्गेजेस आर ऑलवेज नॉन रिकोर्स। अब ये अभी जो भी हमने डिस्कस किया ना, वो क्या था, रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक एंड कमर्शियल मॉर्गेज बैक, मतलब मॉर्गेज मॉर्गेज वाला हो गया। अब एसेट बैक, एसेट बैक सिक्योरिटीज क्या होती है, जिनका अंडरलाइन फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स मतलब बैंक के लिए एसेट क्या है, क्रेडिट कार्ड के डेट्स, स्टूडेंट लोन, होम इक्विटी लोन्स, ऑटोमोबाइल लोन्स, तो ये कुछ लोन्स हैं। अब मैं ये लोन्स की बात करी, लोन्स, ऊपर मॉर्गेज बैक में क्या था, एसेट्स थी, प्रॉपर्टीज, मतलब आपने लोन दिया, उसके अगेंस्ट में आपको मॉर्गेज मतलब गिरवी पे कुछ तो लोग रखे गए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, या फिर कार, या फिर हाउस प्रॉपर्टी, कुछ तो प्रॉपर्टी थी, मॉर्गेज था, जिसको आपने आगे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल को दे दिया। अब हम बात करें एसेट्स बैक सिक्योरिटीज, एसेट्स बैक में क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में आप कुछ मॉर्गेज नहीं लेते हो, कभी भी बैंक आपसे क्रेडिट कार्ड, आपको जब आपको क्रेडिट कार्ड बेचती है तब उसके अगेंस्ट में आपसे कुछ भी नहीं लेती है। अगर आप लेट पेमेंट करोगे क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज की, पेमेंट लेट अगर करोगे तो इंटरेस्ट चार्ज होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का लोन देने के लिए आपको बैंक कभी भी मॉर्गेज कुछ नहीं लेती है। आप कभी अपना हाउस प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखते हो क्रेडिट कार्ड के लिए, चाहिए ही नहीं क्रेडिट कार्ड ऐसा, फिर तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये वो लोन्स की मैं बात करी, एसेट्स मतलब बैंक के लिए सबसे बड़ी एसेट क्या होती है, शेड्यूल नंबर 9, लोन्स एंड एडवांसेस, Advances. बस ये वही Advances. बात चल रही है। ये अलग अलग टाइप के लोन्स है, देखो क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में आपने लोन दिया किसी को एजुकेशनल लोन दिया मतलब स्टूडेंट लोन, किसी को घर खरीदने के लिए लोन दिया, होम लोन, किसी को ऑटो लोन, कार खरीदने के लिए लोन दे दिया, ऑटो लोन्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो लोन्स है ना, इसको आपने आगे दे दिया स्पेशल पर्पस व्हीकल, क्योंकि अब आप देखो ये लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और इंस्टॉलमेंट कैसे इनसे लेनी है, आप मुझे लमसम अमाउंट दे दो, अब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर से लोन का अमाउंट वसूल करना, लोन का पूरा सर्टिफिकेट ही आपने बेच दिया।
समझ में आया? तो ये होता है आपका एसिड बैक सिक्योरिटी। नेक्स्ट होता है कोलेटरलाइज। अभी देखेंगे एक और स्लाइड है जो एसिड बैक के बारे में है। बोलो तो पहले बता दूं, ये बता दूं एसिड बैक के बारे में पूरा। हाँ चलेगा, हाँ मैम। कंटिन्यू। ओके ओके ठीक है। देखो अब ये एसिड बैक सिक्योरिटीज का के बारे में डिटेल में बता रहा है। मतलब दो होते हैं एसिड बैक में भी, दो होते हैं, एक एमोर्टाइजेशन एसिड्स, एक नॉन एमोर्टाइजेशन एसिड्स। एमोर्टाइजेशन मतलब जो राइट ऑफ होते हैं, राइट ऑफ। जैसे जैसे आप पे करते जाएंगे ना वैसे वैसे लोन कम होता जाएगा। ऑटो लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, हाउस लोन, होम लोन, एजुकेशनल लोन, जैसे जैसे आप पे करते जाएंगे आपके बर्डन सर से राइट ऑफ होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन कुछ लोन ऐसे होते हैं आप जितना लें कम नहीं होगा, नॉन एमोर्टाइजिंग। मतलब क्रेडिट कार्ड। अभी देखो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको आप लोन लेते जाओ कभी कम नहीं होगा। आप क्रेडिट लिमिट दी जाती है, लिमिट है आप just give me a minute, let me put in charger। तो मैं क्या बता रही थी, नॉन एमोर्टाइजिंग मतलब क्रेडिट कार्ड की लिमिट बता दी जाती है आपको, साल भर की लिमिट है सपोज 1 लाख। अभी ऐसे थोड़ी होता है कि 1 लाख के ऊपर, मतलब सॉरी, अब आप 50,000 उठाते हो लोग, ठीक है 50,000, तो 50,000 जब आप रीपे कर लोगे तो बाकी 50,000 भी तो उठा सकते हैं ना। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? नॉन एमोर्टाइजिंग का मतलब होता है इसमें बर्डन राइट ऑफ नहीं होते, आप उसके ऊपर भी उठा सकते हैं। 50,000 का आपने कोई एक डीवीडी गेम खरीदा क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी से। तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी से फायदा क्या होता है, ये आप जो 50,000 की गेम खरीद रहे हैं ना उसका इंस्टॉलमेंट आप धीरे धीरे भर सकते हैं। कंपनी को तो आपने पूरा पे कर दिया, जिससे गेम खरीदा डीवीडी गेम, ठीक है, पूरा उसको पे कर दिया। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको धीरे धीरे बैंक को चुकाना है, मतलब आपको उनको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में चुकाना है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये 50,000 के ऊपर आप एक और लोन नहीं ले सकते? क्रेडिट कार्ड, उसी सेम क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख है तो आप 50,000 के अलावा भी क्रेडिट कार्ड में से निकाल सकते हैं, जबकि आप 50,000 की तो पेमेंट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। पर किसी और चीज के लिए भी अगर लिया आपने, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज यूज की, तो राइट ऑफ थोड़ी हो रही है। तो समझ आ रहा है आपको? इसमें क्या होता है, जैसे जैसे पे होता जाएगा राइट ऑफ होता जाएगा, ठीक है। वाटरफॉल मैकेनिज्म यूज होता है इसमें, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है कि आप हर महीने इतना प्रिंसिपल इतना इंटरेस्ट पे करते जाइए, शेड्यूल्ड, जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड प्रिंसिपल पे रीपेमेंट्स। तो इसमें वो होता है एमोर्टाइजिंग में, मंथली पेमेंट करते जाइए प्रिंसिपल अमाउंट का, इंटरेस्ट का, ठीक है। या फिर उसे वाटरफॉल मैकेनिज्म भी बोला जाता है, जैसे जैसे आप पे करते जाएंगे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो नॉन एमोर्टाइजेशन होता है ना, इसमें कैश फ्लो में क्या कंसिस्ट होता है, फिनेंस चार्जेस, फीस, प्रिंसिपल पेमेंट, आप ये पे करते, इसमें इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं। कभी भी क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट नहीं पे करते, क्या पे करते, क्रेडिट कार्ड की फीस पे करते हैं। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से नहीं किया बैंक को, तो मतलब जो आपने लोन लिया क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में, अगर वो टाइम से नहीं पे किया तो उसके चार्जेस लगते हैं आपके ऊपर, पेनल्टी लगती है। इस पे कभी इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, ठीक है, पेनल्टी लगती है। प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट होता है इसमें, फीस पेमेंट होता है, चार्जेस की पेमेंट होती है। ओके, तो ये क्लियर हुआ सबको एसिड बैक सिक्योरिटीज? यस यस। मैम। So next is collateralized debt obligation and last is future flow securitization। मतलब ये दो और टाइप्स अभी हम करेंगे। आप 5 मिनट्स की ब्रेक लेकर फिर ज्वाइन कीजिए। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम।